રામ કબીર ભજનની શરૂઆત કરીએ. ओम श्री सद्गुरु कबीराय नमः। आ एक सिंगल अपना लोककविનું ભજન છે. તે મારા દાદાજી ઘણા વર્ષો પહેલા સવારે આકાશવાણી પરથી ભક્તિ સંગીતના પ્રોગ્રામ થતા એમાંથી એમને ગમતા ભજનો લખી લેતા. એ મા સર્વેશ્વરી તરફથી મને સંગ્રહ કંઈક દાદાજીના લખાણનો મળેલો તેમાંથી હતું. એટલે અમને જેવું સમજણ થાય છે તેવી રીતે ગાઈએ છીએ. શબ્દો સરસ છે, સમજાય એવા જ છે. અને પ્રભાતના રાગનું થોડુંક લાગે છે આમાં, એટલે રાગ રાગણીનું મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ રામ કબીર તમને સૌને ગમશે. વારજે તું વારજે, વેગ મનના વારજે, મૂળથી અભિમાન ત્યાગી, મોહ મમતાને વારજે. એ વારજે તું વારજે, નિત સવારે વહેલા ઉઠી, નિત સવારે વહેલા ઉઠી, શ્રી હરિ સંભાળજે, દેહ તારો શુદ્ધ કરીને વેદ મંત્ર ઉચારજે. એ વારજે તું વારજે, સંગત કરજે જ્ઞાની જનની, સંગત કરજે તું જ્ઞાની જનની, હથિલાથી તું હારજે, દુર્બળ દેખી દાન દેજે, ઠામ જોઈ ચિત્ત ઠારજે. એ વારજે તું વારજે, વેગ મનના વારજે, મૂળથી અભિમાન ત્યાગી, મોહ મમતાને વારજે. એ વારજે તું વારજે, જરા તને પણ દોષ ન લાગે, જરા તને પણ દોષ ન લાગે, એવા ધંધા તું ધારજે. પિંગળ કહે તું રામ રટજે, વારજે તું વારજે. એ વારજે તું વારજે, વિવેક મનના વારજે, મૂળથી અભિમાન ત્યાગી, મોહ મમતાને વારજે. એ વારજે તું વારજે. ઓમ રામાય નમઃ. રામ કબીર. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. સૌ ભાઈઓ અને બહેનોને રામ કબીર. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA એની સૌ શાખાઓ અને કાર્યકર્તાઓ વતી હું રાજેન્દ્ર ભક્ત આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં સૌનું પ્રેમભર્યું સ્વાગત કરું છું. આજની શરૂઆત એક સુંદર ભજન જેના રચયિતા હતા પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી નારાયણનંદ સરસ્વતી મહારાજ, જે પિંગળના નામે જાણીતા, તેમનું સુંદર ભજન શ્રી જગદીપભાઈ રમેશભાઈ ભક્ત તે શરૂઆત કરી, વાતાવરણને મંગળમય અને ભક્તિમય બનાવ્યું.
તો સમગ્ર ભક્ત સમાજ જગદીપભાઈનો આભાર માને છે અને થેન્ક યુ વેરી મચ જગદીપ. આટલું સુંદર જે આપણે કહીએ ને કે સ્થિતપ્રજ્ઞાના લક્ષણોમાં પણ બધી આવે છે, એ જ કેવી રીતે આપણે જીવનશૈલી જીવવી જોઈએ એ આ ભજનની અંદર કેટલું સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું છે. અને એમના દાદા સ્વર્ગસ્થ કાળીદાસ દાદાનું આ પ્રિય ભજન હતું અને એક આપણે કહીએ ને કે પ્રભાતિયાના રાગમાં ગાયું. બહુ સુંદર. તમે વાતાવરણ મંગલમય બનાવ્યું જગદીપભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આ ભજનનો જે આમાં જે પિંગળ કહે છે કે ભાઈ આપણી જીવનશૈલી કેવી હોવી જોઈએ. કારણ કે આજે શું કે એક પહેલા તો હું સૌને એક યાદ કરાવું કે આજે કબીર વિઝડમના કાર્યક્રમ દ્વારા આપણે 70 મિનિટ પણ દર રવિવારે મળીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ પરમાત્મા આપણે 10,800 મિનિટ આપે છે આખા અઠવાડિયાની, અને તેમાંથી આપણે 70 મિનિટો લાઈવ ક્યાં તો રેકોર્ડિંગ દ્વારા જોઈ અને સત્સંગનો લાભ લઈએ છીએ. તો આ એક પૃથ્વી પરની આપણી જે મનુષ્ય જીવન યાત્રા છે એ હંમેશા આપણી એમાં જાગૃતતા કેમની કેમ વધે ને વધે આપણી. તો જેમને પ્યાસ છે અને હવે સમય પણ આપણે નક્કી નથી કે કેટલો સમય આપણે પૃથ્વી પર હોઈએ છીએ, તો જેમની પ્યાસ પ્રમાણે આપણે જાગૃતતા વધારે અને વધારતા જઈએ તો સત્સંગ દ્વારા આપણે આ રીતે લાભ લઈએ. આ અમારો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ છે કે કબીર સાહેબનું જ્ઞાન, સદગુરુ કબીર સાહેબનું જ્ઞાન અને જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે આપણા ઋષિ મુનિઓ મૂકી ગયેલા, એ જ આપણે કબીર વિઝડમ દ્વારા અમે પ્રસારિત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. જુદા જુદા સંતો, જુદા જુદા જ્ઞાની પુરુષોને લાવી અમને એમના દ્વારા જે જ્ઞાન પીરસવામાં આવે છે એ આપણે જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ લેવું. કારણ કે એક આપણે ડિસ્ક્લેમર કહીએ ને, કારણ કે દરેક સંત પોતપોતાનો અભિપ્રાય આપે. આપણે એ જ જોવાનું કે મારે શું લેવું અને મારે કયું યોગ્ય છે. તો આજના ભજનની વાત કરીએ તો એ જીવનશૈલી કેટલી સુંદર રીતે અને જે છેલ્લા સેન્ટેન્સમાં પણ કેટલું સરસ જગદીપભાઈ કીધું કે જરા પણ દોષ ન લાગે એવા ધંધા તું ધારજે. કારણ કે બિઝનેસ તો આપણે કરવાનો જ છે, ધંધાકીય સંસારિક જવાબદારીઓ નિભાવવાની જ છે અને એમાંથી આપણે કંઈ ભાગી જવાનું નથી. પરંતુ એમાં પણ જાગૃતતા કેવી રહે તે જ એક આપણે હંમેશા યાદ રહેવું. અને એમાં ઈચ્છાઓને કેવી રીતે મેનેજ કરવી. કારણ કે સ્થિતપ્રજ્ઞા લક્ષણોમાં કીધું છે ને કે ઇન્દ્રિયો વિષય દોડે તે પૂઠે જે વહે મના, દેહી નીતે હરે બુદ્ધિ જેમ વાર નાવને જડે. તો એક વારજે, તું વારજે, વેગ મનના વારજે. કારણ કે વેગ તો આવ્યા જ કરવાના મનની અંદર, અને એ વેગો ને આપણે શુદ્ધિકરણ કરી અને પછી જો આપણે માટે માફક નહીં હોય, કુટુંબ માટે માફક નહીં હોય, જગત માટે સારું નહીં હોય, તો એ વેગને આપણે વારવાના છે. તો એ ખાસ, અને તમારા દેહની શુદ્ધિની વાત કરી છે, જ્ઞાનીજન સત્સંગની વાત કરી છે. કારણ કે એકલા મનુષ્ય આ જીવન યાત્રા બહુ ડિફિકલ્ટ પડી જાય છે આપણને. આ જે જાગરણ કેળવવાનું અને સતત જાગરણ કેળવવાનું, એ ફક્ત એક પુસ્તક વાંચવાથી નથી આવી જતું, એક ભજન ગાવાથી નથી આવી જતું, પરંતુ સતત અભ્યાસ કરી, સતત સત્સંગનો લાભ લઈ અને આપણે એનો આગળ જાગૃતતા લાવી શકીએ. તો એમાં આપણા મિત્રો કેવા હોવા જોઈએ, એના એ મિત્રો અને દુનિયા આપણું દર્પણ છે, એની પણ વાત કરી છે. આપણી દુર્બળ નબળાઈઓની હંમેશા, દુર્બળ લોકોને, નબળા લોકોને હંમેશા મદદ કરવાની તેની પણ વાત કરી. અને જે ધંધાકીયની વાત કરી એમાં પણ આપણે આવી ગયા કે આપણે જે ભારતમાં હતા ત્યારે આપણો ધંધો ખેતી હતો, અહીંયા વ્યવસાય મોટે ભાગે આપણે મોટરનો છે અને બીજા વ્યવસાય પણ કરીએ છીએ. તો એમાં પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જગત કલ્યાણ થાય અને હું એવું ખોટું નહીં કરું કે જેને લીધે નુકસાન થાય.
તો એક સુંદર ભજનની આજે શરૂઆત કરી. તો આજે આપણે સૌ આપણે એક જેને સદગુરુ શ્રી રણજીતદાસજી સાહેબ, જે ભારતથી કબીર સાહેબનો એનો મુખ્ય ધ્યેય છે કબીર સાહેબનો જ્ઞાનનું પ્રચાર કરવો, અને એ હંમેશા કબીર સાહેબની શિબિરો કરે છે અને સત્સંગ કરે છે. તો એમનો એક વિડીયો આપણે સાંભળીએ અને હું પાછો સૌને યાદ કરાવું કે વિડીયોમાં જે મેસેજ આપે છે તે આપણી અલગ અલગ રીતે જેમને યોગ્ય લાગે એ જે આપણને એમાંથી ગમે તે તત્વ ગમે એને પકડો, એક તત્વ પણ પકડો અને તેના પર આપણે ચિંતન મનન કરીને જાગરણ કેળવીએ. તો હવે અને અંતમાં આપણે જો સમય હશે તો થોડીક કોમેન્ટ લઈશું કે ભાઈ આપણે એકબીજાને કેવી રીતે આમાંથી શું શીખ્યા અને એકબીજાને જાગૃત કરવામાં કેવી રીતે મદદરૂપ થઈએ, તો જ આપણે આ સત્સંગનો ખાસ આપણે ખરો લાભ લઈ શકેલા હોય. તો હું હવે વિડીયો શેર કરું છું. कानों से सुनना कम हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ पैर के चाम लटक गए, और अभी भी तुम गफलत में हो। बहुत दूर बहुत लंबा चलना है, ए साधो जरा राम को याद कर लेना। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मैं उन्हें खोजने कहां जाऊं, मैं हरि को राम को खोजने कहां जाऊं, पता भी तो नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं हरि हजूर नहीं दूर विराजे। जो हरि है हजूर है ये दूर नहीं बसता है, तुम्हारे भीतर ही है। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। अपने हृदय के दरवाजे को एक बार खोल कर देखो, तुमने इसे बंद कर रखा है। अपने हृदय को तुमने गंदा कर रखा है, अपने हृदय को तुमने अपवित्र कर रखा है, इसलिए तुम्हें परमात्मा दूर मालूम पड़ते हैं, भगवान दूर मालूम पड़ते हैं। एक बार अपने हृदय के आंगन को साफ करके तो देखना, एक बार अपने दिल को पवित्र करके तो देखना। हरि हजूर नहीं दूर विराजे, दिल की दरमती मूर। कहत कबीर सुनो भय साधो, आप ही आप हजूर। जिस दिन तुम स्वयं को देख सकोगे तुम्हें पता चलेगा कि वो परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। तो इस तरह से सदगुरु कबीर के इस पद को हम अपने जीवन में उतारें, समझें, जानें कि सदगुरु कबीर हमें किस ओर इशारा करते हैं। सदगुरु कबीर किससे कहानियों की बात नहीं करते, वे ईश्वर परमात्मा की बात नहीं करते हुए कहते हैं कि तुम ही हो परमात्मा। अपने भीतर के परम तत्व को समझने की देर है, अपने भीतर के सत्य को समझने की देर है। माया के वशीभूत होकर हमने संसार को तो जाना, हमने दुनियादारी को तो जाना, धन को तो जाना, स्वयं को नहीं जाना। इसलिए हमें लगता है परमात्मा कहीं और बैठा होगा, इसलिए हमें लगता है भगवान कहीं और बैठा होगा, और फिर उसे पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, और वो मिलता नहीं है। अब जो चीज बाहर होगी तभी तो मिलेगी, जो बाहर है ही नहीं अगर हम उसे खोजने चलें तो कैसे मिलेगी। मान लीजिए आपके घर में जो वस्तु है अगर वो खो जाए तो मिल जाएगी, जो वस्तु थी ही नहीं और आप कहें कि उसे मैं खोज रहा हूं, वो कहां से मिलेगी। जो व्यक्ति इस पंडाल में बैठा होगा वही तो किसी को मिलेगा, जो इस पंडाल में आया ही नहीं वो उसे कोई खोजने आ जाए तो कहां से मिलेगा। अभी कोई आदमी आए यहाँ और कहे मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूं, मैं यहीं उनसे मिलना चाहता हूं, वो यहाँ है ही नहीं, कहां से मिल लेंगे। पर यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और आपसे कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। परमात्मा जब हृदय में है आप उसे बाहर खोज रहे हैं, कहां से मिल जाएंगे। तो सदगुरु कबीर अपने शब्दों में बड़े ही सशक्त भाव से, बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बात करते हैं। वो संदेह में नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हाँ पता नहीं तुम ही परमात्मा होगे, वे कहते तुम हो, आप ही आप हजूर, तुम ही हो, बस जानने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं जो बातें कहूंगा वो संशय में लोग पता नहीं समझे या ना समझे। उन्होंने स्पष्ट कहा, निश्चयात्मक बोध के साथ कहा,
और बिना डर के कहा। ऐसी ऐसी बातें सदगुरु कबीर ने उस समय में कही है जो आज लोगों के लिए मुश्किल हो जाती। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों में जो कुरीतियां आई थी, दोनों में जो रूढ़िवादिता थी, दोनों में जो संप्रदायवाद का भाव था, जातिवाद का भाव था, छुआछूत के भाव थे, सदगुरु कबीर ने दोनों को लताड़ा, दोनों को कहा। और पुरा काल से ही माताओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का ही अधिकार नहीं था कि पढ़ नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वेद तो छू ही नहीं सकते। सदगुरु कबीर ने कहा, को पुरुषा को नारी, तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो, महान कहते हो, तुम्हें जन्म देने वाली तो माँ है और तुम उसे ही कहते हो पढ़ने का अधिकार नहीं। जो तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुमने उसी नारी को, उसी माँ को, उसी स्त्री को तुमने दूर कर दिया कि शिक्षा नहीं ले सकती, पढ़ नहीं सकती, मंदिर नहीं जा सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो नारियां वेद लिख सकती हैं वो पढ़ क्यों नहीं सकती, जो नारियां शिक्षा की देवी हैं वो शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकती। और उन्होंने माताओं को भी आगे लाने का प्रयास किया। तो वो संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं जिन्होंने समता का भाव जागृत किया, मानवता का भाव जागृत किया, पुरुषार्थवाद का भाव जागृत किया। वे कहते थे कि भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, इस धरती पर कुछ भी भगवान के भरोसे नहीं होता, इस धरती पर कुछ भी भाग्य के भरोसे नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं, कह देते हैं भगवान की इच्छा होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भगवान की माया होगी तो मैं सत्संग में जाऊंगा, भाग्य में लिखा होगा तो मैं सत्संग में जाऊंगा। लेकिन वही आदमी तंबाकू खाता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तब तंबाकू खाऊंगा। वही आदमी हिंसा करता है तब नहीं कहता कि भगवान की इच्छा होगी तो हिंसा करूंगा। वही आदमी चोरी करता है तब नहीं कहता भगवान की इच्छा होगी तो चोरी करूंगा। धर्म करना हो तो भगवान की इच्छा आ गई, पुण्य के मार्ग पर चलना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो तो हम भगवान पर टाल देते हैं। सारे अनैतिक कर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन धर्म करना हो, सत्संग में जाना हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो, हम भगवान पर टाल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम अच्छा करते हो तुम जिम्मेदार हो, तुम मालिक हो, और तुम बुरा करते हो तो तुम ही मालिक हो। ऐसा नहीं कि बुराई तुम करते हो और अच्छाई कोई और आकर कर देता है। तुम चाहो तो अच्छा कर सकते हो, तुम चाहो तो बुरा कर सकते हो। सदगुरु कबीर ने कहा, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब ते समर संहार। उन्होंने कहा तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो, तुम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदार हो। दूसरों पर मत डाल देना कि कोई आएगा तो कर जाएगा। आज समाज में फैले हुए समस्त समस्याओं का कारण मनुष्य है, कोई भगवान नहीं है। अगर किसी भी समस्या का कारण भगवान है तो ये मनुष्यों को ज्ञान देने का क्या फायदा। आदमी कहता है कि जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो इस धरती पर जितनी भी दुर्घटनाएं घट रही है, जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी व्यभिचार हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, फिर तो सबका जिम्मेदार भगवान को होना चाहिए। और फिर तो यहाँ सत्संग में भगवान को बुला के सुनाना चाहिए। उन्हीं का खोपड़ी ठीक नहीं, क्योंकि खोपड़ी खराब भगवान का है। इंसानों को सत्संग सुनाने से क्या फायदा, क्योंकि इंसान तो जिम्मेदार है ही नहीं। आप तो कुछ करते ही नहीं, सब तो भगवान करते। आदमी कहता है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचा रहे हैं, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर चोर अपना चाकू कैसे हिला लेता है, फिर आतंकवादी अपना बंदूक कैसे हिला लेता है, व्यभिचार करने वाले अपने कदम अपने हाथ कैसे हिला लेते हैं। इसका मतलब उन सारे अनैतिक कर्मों में भगवान की इच्छा शामिल है। फिर वो भगवान नहीं, वो शैतान है, और उन्हें ही ठीक करने की जरूरत है। फिर हमारे भारत के जेलों में जो कैदी बंद हैं वो बंद करने योग्य नहीं थे, भगवान को बंद करना था, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान ने करवाया है। फिर उन्हें दंड क्यों। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि तुम अपने कर्मों का जिम्मेदारी खुद लो, तुम मालिक हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम दायित्व निभाओ। तुमने टाल दिया कि अच्छा कुछ करने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलने की बात आई तो भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलने की बात आई, पुण्य करने की बात आई, परमार्थ करने की बात आई तो हमने टाल दिया कि भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे। लेकिन सारे अधर्म हम अपनी इच्छा से करते हैं। सदगुरु कबीर ने यहां भी रोका कि नहीं, आप जिम्मेदार हैं। सोचो, ये भारतवर्ष जब गुलाम था, 800 साल मुगलों के और 200-250 वर्ष अंग्रेजों के, तो किसने आजादी दिलाई, किसी भगवान ने या हमारे शहीदों ने। तब भगवान कहाँ थे, तब हमारे शहीदों को ही वो कदम उठाना पड़ा। और ये पंजाब तो उन शहीदों की भूमि है।
कितने ही वीरों ने अपनी शहादत इस भूमि से दी है, फिर भी हम नहीं सोचते कि जब देश इतने बड़े संकट में था, इतने साल, इतने वर्षों, सैकड़ों वर्षों आक्रांताओं के हाथ में था, तब कोई भगवान को करुणा क्यों नहीं हुई कि मैं आकर के इस देश को आजाद कर दूं। लोग कहते हैं कि प्रहलाद जब संकट में थे तो भगवान आ गए, खंभा फोड़ के आ गए। नरसिंह भगवान खंभा फोड़कर आ गए और प्रहलाद को बचा लिए। मैं तो कहता हूं जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे दीवार में चुनवाए जा रहे थे तब भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि तब तो पारिवारिक मामला भी नहीं था, राष्ट्रीय मामला था। प्रहलाद जब दीवार में चुनवाए गए तब तो पारिवारिक मामला था, पिता पुत्र का झगड़ा था, फिर भी भगवान आ गए। लेकिन जब देश के खातिर अपना शीश न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए जब भगवान नहीं आए, तब हमें समझना पड़ेगा, तब हमें जानना चाहिए, तब हमें जागृत होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें ही अपने भीतर के सत्य को, साहस को जगाना पड़ेगा, हमें ही अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना होगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे किसी भगवान की प्रतीक्षा में बैठेंगे तो ये देश का बंटा ढार होना तय है। इसलिए हमारे 7 लाख से ज्यादा वीरों ने यह संकल्प लिया कि नहीं, हमें ही देश को आजाद करना है। और इसलिए भगत सिंह जी के बारे में कहते हैं, वो कहते थे मैं नास्तिक हूं। तो क्यों? क्योंकि भगवान होते तो कब के आजादी मिल जाती, वो हैं ही नहीं, तो आजादी कहां से मिलेगी? और उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पूरा संसार पागल है, भारत के लोग विशेषकर पागल है। इसलिए उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं। आप सब जानते हैं इसी धरती के लाल थे। तो सदगुरु कबीर ने उसी भाव को जगाया कि अपने भीतर के सत्य को जगाओ, आपके भीतर है सामर्थ्य। आप चाह ले तो समाज से एक एक बुराई मिट सकती है, आप चाह ले तो समाज से एक एक कचड़े समाप्त हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हम सबका ही मन गंदगी से भरा है, तो हम समाज की सफाई कैसे करेंगे? अगर हमारा ही मन गंदगी से भरा हो, हमारा ही मन कचड़े से भरा हो, तो हम समाज को साफ कैसे करेंगे? इसलिए सदगुरु कबीर ने इशारा किया कि हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अब ते समर संहार। आप जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने अपने भीतर के ज्ञान को जगाया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो अंधेरे को मिटना पड़ेगा। अगर आपने प्रकाश की व्यवस्था नहीं की है और हजारों लाठियां लेकर खड़े हो जाएं रात में, तो उजाले नहीं हो सकते। कोई आदमी बहुत बड़ा पहलवान हो और रात के समय वो लाठी लेकर आ जाए कि मैं अंधेरे को भगा दूंगा, तो कोई उपाय है क्या लाठी से अंधेरे को भगाने का? कोई कहे कि मैं AK-47 से भगा दूंगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन एक छोटा सा दिया भी जला दिया जाए तो अंधेरा भाग सकता है। इसी तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने भीतर अगर भक्ति का दीप तुमने जला लिया, ज्ञान का दीप जला लिया, तो इस समाज में जो अंधेरा है वो मिट सकता है। लेकिन अगर आपका हृदय भक्ति से शून्य है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आपके हृदय में धर्म का दिया नहीं जला, तो समाज से अंधेरा नहीं मिटेगा, समाज से बुराई नहीं मिटेगी। तो इसलिए सदगुरु कबीर हमें ही ज्ञान स्वरूप बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम बनो, तुम अपने भीतर के सत्य को जगाओ। स्त्री हो पुरुष हो, सबके पास वो अवसर है, सबके पास वो सामर्थ्य है कि अपने भीतर के सत्य को जगाकर ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। सदगुरु कबीर इसलिए अनूठे हैं। वे किसी में भेद नहीं करते। वे नहीं कहते कि हाँ कोई बड़ा है जन्म से, कोई छोटा है जन्म से। वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिया वही कथा कर सकता है, वही बड़ा है, वही महान है। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, जो व्यक्ति अपने कर्म को महान बना लिया, अपने कर्म को पवित्र बना लिया, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही तप का अधिकारी है, वही सत्य का अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया तो ऊंचा हो गया और पिछड़े कुल में जन्म लिया तो नीचा हो गया। ये बात सदगुरु कबीर पसंद नहीं करते। इसी संबंध में मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए थे जो मैं जरूर रखूंगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? एक व्यक्ति ने पूछा उनके मन में। अभी जो इटावा में कुछ घटना हुई, आप सब जानते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, जहां एक यादव समाज का व्यक्ति और एक जाटव समाज का व्यक्ति कथाकार बनकर कथा कहने गए, तो जो ब्राह्मण कुल के कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको नीचा दिखाया कि तुम कहां से व्यास गद्दी में बैठने आ गए। तो इसी बात पर किसी ने हमसे भी सवाल किया कि महाराज जी आप बताएं, क्या संत होना या कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? मैंने कहा कि
बात यह नहीं है कि कथा कौन कह सकता है, बात यह है कि इंसान होना महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना, वैश्य होना, शूद्र होना महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, ये प्रकृति से बनकर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि मां के गर्भ से कोई ब्राह्मण बनकर आया है। जन्मना जायते शूद्र, ऋषियों ने कहा कि जन्म से सभी शूद्र है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, जन्म से सभी शूद्र है। तो जो जन्म से शूद्र है वो ज्ञान अर्जन करके, तपस्या करके, ज्ञान के मार्ग पर चल करके ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मण कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, लोगों ने इसे जाति सूचक बना दिया। जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन सकता है ना, कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा, कि प्रोफेसर का बेटा ही प्रोफेसर बनेगा, कि सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति तैयारी करे तो सैनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, IAS IPS बन सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि राष्ट्रपति बन सकता है। सदगुरु संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को धारण करता है, जो व्यक्ति अपने भीतर न्याय, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता को धारण करता है, वो सब ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला नहीं होता। तो मैंने कहा कि जो ब्रह्म को जानता है, जो स्वयं को जान लिया, ब्रह्म को जानना मतलब जिसने स्वयं को जान लिया, मैं कौन हूं, तो जो मैं को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो सभी ब्राह्मण हैं। और वो जाति किसी भी जाति का हो, वो किसी भी कौम का हो, वो ब्राह्मण हो जाता है। फिर वो कथा कहने का अधिकारी हो जाता है। कथा कहने का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन को सजाया है, कपड़ों से नहीं, गहनों से नहीं, बाहरी चीजों से नहीं, संस्कारों से जिसने अपने जीवन को सजाया है, सत्य से जिसने अपने जीवन को सजाया है, वही व्यक्ति दुनिया को प्रकाश दे सकता है, वही व्यक्ति संसार को मार्ग दिखा सकता है। तो मैंने कहा कि जो जिसने भी अपने कर्म से, अपने तप से, अपने ध्यान से स्वयं को सजाया है, वही ज्ञान का अधिकारी है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है, और वही संत हो सकता है। और इसी विषय पर हमारे प्रसिद्ध शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। मैंने उनका एक वचन सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। मुझे बड़ा खेद हुआ कि ऐसे ज्ञान के पीठ पर बैठकर ऐसे शंकराचार्य ऐसा बयान दे रहे हैं, वो जातिवाद फैला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है, जबकि ऋषियों ने कहा था कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ज्ञान नहीं दे सकता है। ज्ञान जो भी दे वो सब ब्राह्मण है, जो भी समाज की सुरक्षा करे वो सब क्षत्रिय है, जो भी समाज में बिजनेस व्यापार करता है वो सब वैश्य है, जो भी साफ सफाई करे कोई भी, वो सब शूद्र है। यहां जाति कहां से आ गई, यहां संप्रदाय कहां से आ गया? तो मुझे तो खेद हुआ कि ऐसे गद्दी पर बैठकर अपने को बड़े धर्मगुरु कहने वाले भी यह बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठ सकता है। मैंने कहा ये बात बिल्कुल भी नासमझी की बात है। सत्य तो यह है कि कोई भी इंसान अपने जीवन को अगर निर्मल बना लिया, पवित्र बना लिया, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, पूजनीय हो गया, वो महान हो गया। तो इस तरह से लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कौन बन सकता है साधु। साधु बनने के लिए बाहरी योग्यता नहीं, भीतरी योग्यता चाहिए कि मन की निर्मलता हो, वचन की निर्मलता हो, कर्म की निर्मलता हो। और जब इस तरह से संकल्प लेकर कोई ज्ञान मार्ग में चलता है वो सन्यासी। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल, सदगुरु ने कहा। साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं, वो भीतर का चिन्ह है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, वेश देख मत भूलिए, पूज लीजिए ज्ञान बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। वेश से कोई साधु नहीं होता कि बड़ा बड़ा टीका लगा लिया, बढ़िया लाल पीला काला हरा कपड़ा पहन लिया, खूब बड़ी बड़ी चोटियां बना ली, कमंडल ले लिए और साधु हो गए। सदगुरु कहते हैं नहीं, ये चिन्ह बाहरी हैं, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। ये तो सर्कस में भी लोग कर लेते हैं, नाटक में भी कर लेते हैं, तो क्या साधु हो गए? ये तो कोई भी कर सकता है। असल बात है ज्ञान होना।
असल बात है रहनी होनी। अगर रहनी है तो हो सकता है आपके ड्रेस में भी कोई सन्यासी हो सकता है। अगर रहनी है, आचरण ठीक है, मन निर्मल है, तो कोई आपके वस्त्र में भी सन्यासी हो सकता है। और यदि रहनी ठीक नहीं है तो श्वेत लाल पीले वस्त्र में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी होने का पैमाना कपड़े नहीं होते, तिलक नहीं होते, माला नहीं होता। सन्यासी होने का अर्थ होता है ज्ञान होना चाहिए। सन्यासी होने का अर्थ है रहनी होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए। जिसके पास आचरण है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास रहनी है, वो सन्यासी है, वही श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर के इन्हीं वचनों के आधार पर हमने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को सुंदर बना लिया, आचरण को सुंदर बना लिया, वही सन्यासी है। और वो कथा कर सकता है, सत्संग कर सकता है। और करने की इच्छा भी क्यों रखना? जो सच्चा सन्यासी होगा उसे बोलने की इच्छा नहीं होगी, क्या मुझे बोलना है, मुझे बोलना है। जो सत्य में, जो वास्तव में संत होगा, वो तो मौन रहेगा। कोई सुनना चाहेगा तो जा करके बोल देंगे, वरना ये नहीं कि चलो मुझे भी बोलने दे दो, मैं भी बोलना चाहता हूं। क्यों बोलना चाहते हो? मैं भी बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहते हो? अगर आपके पास ज्ञान का खजाना है तो उसका जो वास है, सुवास है, लोगों तक खुद जाएगा। लोग फिर खुद आपसे अनुग्रह करेंगे कि आपकी बातें हम सुनना चाहते हैं। और जो ज्यादा खुद ही बड़बड़ करता है, लोग उसे चुप करना चाहते हैं, तू चुप रह। और जो चुप है, आदमी सोचता है आप बोलिए। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर ज्ञान आपके पास है तो गंभीरता सबसे पहले होगी। यही प्रमाण है, जिसके पास ज्ञान होगा वो गंभीर होगा। साहब ने कहा है नहीं, कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। आधा घड़ा जल हो तो छलकता ज्यादा है, लेकिन घड़े में जल पूरा हो तो नहीं छलकता। साहब कहते हैं जिसके पास अधूरा ज्ञान होगा वो ज्यादा बड़बड़ करेगा, वो जहां देखो वहीं प्रवचन देना शुरू कर देगा। लेकिन जिसमें ज्ञान की पूर्णता होगी वो मौन रहेगा। जब आप पूछेंगे 4 बातें तो वो 2 बातें कहेंगे, और बड़े ही तौल कर कहेंगे, बड़े ही शांत भाव में कहेंगे। वो उलझेंगे नहीं, वो उद्वेगित नहीं होंगे। यहीं से समझना कि वो सच्चे संत हैं, जो हर बात में अपना जवाब देने को राजी नहीं है, हर बात में वो बड़बड़ करने को राजी नहीं है। ऐसा हुआ कि एक गांव में एक संत रुके, तो गांव वालों ने सोचा कि अच्छा है एक संत आए हैं, कुछ ज्ञान सुना जाए, कुछ विचार सुना जाए। तो 2-4 लोग चले गए संत के पास। संत मंदिर में ठहरे थे, तो लोगों ने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। संत मौन रहे, कुछ बोले नहीं। लोगों ने फिर कहा कि मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया हूं। तो संत ने कहा क्या जानना चाहते हो? तो कहा मैं ये जानना चाहता हूं भगवान है या नहीं। तो संत ने कहा कि पहली बात तो ये बताओ कि भगवान के बारे में तुम जानना चाहते हो, भगवान के बारे में तुम प्रश्न पूछने आए हो, तो तुम ही बताओ कि भगवान को तुम क्या मानते हो, है या नहीं। तो उसने कहा कि मैं तो मानता हूं कि है, बस आप उसकी चर्चा कर दीजिए। तब संत ने कहा जब तुम पहले ही मान कर आए हो कि वो है ही, तो चर्चा क्या करना, जाओ घर। उसे लगा कि भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं कहना था, लगता है संत बोलेंगे नहीं। वो घर चले गए, सोचे अब क्या करें। तो फिर 1 घंटे बाद लौटे, संत से कहा मैं फिर आया हूं। संत ने कहा मेरा फिर वही प्रश्न है कि क्या तुम भगवान को मानते हो और क्या भगवान है। अब उसने सोचा कि पहले हमने कहा था कि हाँ है और हम मानते हैं, तो संत कहे चले जाओ, जब मानते ही और है भी तो बोलने की क्या जरूरत है। अब की बार वो आकर कहता है कि महाराज जी हमारा उत्तर यह है कि भगवान को हम बिल्कुल नहीं मानते और ना तो भगवान है। कहा फिर भी बोलने की क्या जरूरत है, जब तूने पहले ही तय कर लिया वो है ही नहीं। जिसके बारे में तुमने ठान ही लिया कि वो नहीं है और ना तुम मानते हो, तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ होगी। उन लोगों ने समझा लगता है संत बड़े चालाक, ये पकड़ में नहीं आएंगे, हम तो कुछ बुलवाना चाहते हैं, ये बोलते ही नहीं। क्योंकि प्रश्न गलत हो रहे थे, जिज्ञासा गलत हो रही थी, संत फिजूल में बोलते नहीं। सच्चे संत होंगे वो फिजूल प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि जाओ घर, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो। अब की बार गए, उन लोगों ने आपस में मीटिंग किया, 5-10 लोग इकट्ठा किए कि बड़ी भूल हो गई, संत कैसे बोलेंगे, क्या उपाय किया जाए, क्या प्रयत्न किया जाए। तो कहा कि आधे लोग बोलेंगे हाँ भगवान होते हैं और हम मानते हैं, और आधे बोल देंगे कि नहीं भगवान नहीं होते और हम नहीं मानते हैं, तब तो बोलना पड़ेगा। तो अब की बार 10 लोग गए, संत से कहा कि गुरुजी हम भगवान के संबंध में फिर प्रश्न पूछने आए। संत ने कहा मेरा वही प्रश्न है, क्या भगवान है
और क्या तुम मानते हो? तो 5 लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल भगवान है और हम मानते भी हैं। फिर आधे ने कहा नहीं बिल्कुल भगवान नहीं और हम बिल्कुल नहीं मानते। संत ने कहा मेरा समय क्यों खराब करते हो, आपस में ही चर्चा कर लो, जब आधे जानते हो आधा नहीं जानते हो। तब फिर लोग नाराज हुए, कहा कि ये क्या बात हुई, हम पूछना चाहते हैं बताना ही नहीं चाहते। कहा तुम प्रश्न ही गलत लेकर आ रहे हो, आधे लोगों को पता है भगवान है आधे को नहीं है, तो आपस में ही बता दो ना, हमारा समय क्यों खराब कर रहे हो। वे लोग चले गए। संत ने अपने संस्मरण में लिखा कि चौथी बार वे लोग लौट कर नहीं आए, और शायद चौथी बार आ जाते तो संत कुछ बातें कर सकते थे, क्योंकि चौथी बार उनके प्रश्न खत्म हो गए थे। तब वो वास्तव में जिज्ञासा लेकर आते, वास्तव में वो कुछ न कुछ शंका लेकर आते। अभी तो वो रटा रटाया लेकर आ रहे थे, पढ़ा पढ़ाया लेकर आ रहे थे, सुना सुनाया लेकर आ रहे। अपने हृदय से जो शंका पैदा होती है, अपने भीतर से जो संदेह का जन्म होता है, जिन जिज्ञासाओं का जन्म होता है, संत सच्चे होंगे उन्हीं का उत्तर देंगे, व्यर्थ के प्रश्नों का नहीं देंगे। तो जो सच्चे संत हैं वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे आपके बिल्कुल सटीक जिज्ञासाओं पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सदगुरु ने कहा कि साधु होने का मतलब बाहरी चिन्ह नहीं है कि कोई भी कमंडल उठाया, कोई भी तिलक लगाया, चल दिया साधु हो गया। सदगुरु कहते हैं नहीं, साधु होना भीतर की बात है, वो कोई भी हो सकता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो आपके भीतर भी वो साधना जग सकती है, आपके भीतर भी वो चैतन्य जागृत हो सकता है, आपकी भी चेतना जग सकती है, और फिर आप संत हो सकते हैं। इसलिए तो साहब ने सबको संत कहा। कहत कबीर सुनो हो संतो, क्या उन्होंने सिर्फ संत को कहा? कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्या सिर्फ साधु को कहा? वो सबको कहते हैं। संतो कहिए श्रोता को, संतो शांत स्वभाव। वे कहते हैं कि जितने भी हैं इस धरा पर जो जागृत हो रहे हैं, जो शांति में जी रहे हैं, वो सब संत हैं। तो सदगुरु कबीर भी कहते हैं कि जिसने अपने मन वचन कर्म को निर्मल किया, अपने हृदय को पवित्र किया, वही सच्चे अर्थों में ब्रह्म है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ है, संत है। फिर इसी क्रम में कुछ लोगों का यह भी प्रश्न आया, सदगुरु कबीर धरती पर क्यों आए? और कैसे आए? अब इन 2 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सदगुरु कबीर इस धरती पर क्यों आए। कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस पर विवाद है। बहुत से हमारे ही अपने कबीर पंथ के भक्त ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए, कुछ कहते हैं जन्म लिए, तो इस पर विवाद है। पर इस पर हमें उलझने की जरूरत नहीं है कि सदगुरु कबीर प्रकट हुए कि जन्म लिए। क्यों आए ये महत्वपूर्ण है। मैंने कल चर्चा भी किया था, शाम को कुछ भक्त बैठे थे कि मान लीजिए मैं बिहार से यहां आया, तो मैं कैसे आया? आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए आया, आप ये जानना चाहते हैं। आपने किसी ने तो नहीं पूछा कि आप बिहार से कैसे चले, किस साधन से चले, कहाँ उतरे, कहाँ चढ़े, कैसे बैठे, कैसे लेटे, कैसे उतरे, ये इसमें आपको रुचि नहीं है। आपकी रुचि है कि आप किस लिए आए, क्या देने आए। सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके थाली में भोजन आ गया तो, या आप कुछ दुकान पर मिठाई खरीदने जाते हैं तो क्या आप हलवाई से पूछते हैं कि कितना चीनी डाला, वो चीनी किस फैक्ट्री का था, किस व्यक्ति ने बनाया, किस दुकान से तुमने चीनी खरीदा, कितने समय तुमने मिठाई बनाई। आप सोचते हैं तुमने जैसे भी बनाया वो तेरा काम, हमारा काम तो मिठाई से है। सदगुरु कहते हैं मैं कैसे धरती पर आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। साहब कहते हैं कि मैं किस माध्यम से आया ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इस सृष्टि को जगाने आया हूं ये महत्वपूर्ण है, और वही मेरा परिचय है, ज्ञान ही मेरा परिचय है। तो यह जानना है कि सदगुरु कबीर इस धरा पर किस भांति आए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों आए। सदगुरु कबीर समस्त सोई हुई सृष्टि को जगाने आए। जब मानवता सो रही थी, जब इंसानियत सो रही थी, जब एक एक मनुष्य की चेतना सो रही थी, आपस में लोग लड़ रहे थे जातियों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, उस कली काल में, उस अंधेर नगरी में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ और उन्होंने समाज को जगाया, समाज को झकझोरा, जातियों में बटे हुए समाज को लताड़ा कि तुम एक हो। उन्होंने कहा
एक ही त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है गो ब्राह्मण को शूद्र। उन्होंने कहा कि तुम ऊंचा नीचा के भेद में पड़े हो, बड़े छोटे के भेद में पड़े हो, गरीब और अमीर के भेद में पड़े हो, ब्राह्मण और शूद्र के भेद में पड़े हो। सदगुरु कहते हैं जन्म सबका समान हुआ, कोई अंतर नहीं है। कारी पियरी दुहो गाई, ताकर दूध देहु बिलगाई। साहब कहते हैं कि काली पीली गाय का, सफेद गाय का दूध दूह लो और कहीं बाहर में रख दो, कोई बता पाएगा कि ये दूध काली गाय का है कि सफेद गाय का है? साहब कहते इसी तरह सबके त्वचा में वही है, खून लाल है, हड्डी वही सफेद है, मांस वैसा ही है। फिर तुम कैसे कोई कहते हो कि ब्राह्मण हो गया, कोई शूद्र हो गया? व्यक्ति कर्म से ऊंचा बनता है, कर्म से नीच बनता है। कर्म बढ़िया हो तो एक इंसान भगवान बन जाता है, कर्म खराब हो तो वही एक इंसान शैतान बन जाता है। कर्म बढ़िया हुआ तो मुसलमान समाज में जन्म लेने वाले अब्दुल कलाम हमारे लिए मसीहा बन गए, और कर्म घटिया हो गया तो लादेन जूता खाया, मार खाया, मारा भी गया, कसाब पकड़ाया, फांसी हुई। वही समाज में जन्म लेकर के अब्दुल हमीद नाम रोशन कर गए। इसी हिंदू समाज में कितने ऐसे लोग हैं जन्म लेकर के, इसी सिख समाज में जन्म लेकर के, इसी जैन बौद्ध समाज में जन्म लेकर के, इसी ईसाई समाज में जन्म लेकर के कितने लोग श्रेष्ठ हो गए और कुछ लोग अपने कर्म से नीच हो गए। साहब कहते हैं जाति से कोई बड़ा थोड़े हुआ, आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, कर्म से नीच होता है। अगर कोई मांस खाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, कोई अपने भाई के साथ धोखा करता है, माता पिता गुरु का अनादर करता है, फिर उसे हम राक्षस कह सकते हैं। फिर वो बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन अगर किसी के जीवन में शुद्ध शाकाहार है, कोई वैष्णव जीवन जीता है, माता पिता गुरु का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, मित्र के साथ निश्चल व्यवहार करता है, अपने परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, तो समझना फिर वो देवतुल्य है, वही इंसान कहलाने योग्य है। कोई व्यक्ति ऊंचे कुल के कारण बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है। जिसका कर्म महान है वो बड़ा हो गया, जिसका कर्म नीचा है, उसके हाथ का पानी मत पीना। मान लो कोई मांसाहारी आदमी, उसके हाथ का पानी मत पीना, लेकिन यह सोच करके कोई नीचे कुल का है उसका पानी नहीं पिएंगे, साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारी बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचय होगा। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, कोई धर्म परायण है, वो किसी भी जाति का हो, फिर उसके हाथ का जल पी सकते हो, उसके हाथ का भोजन कर सकते हो, और सौभाग्य समझना कि किसी भक्त, किसी संत के हाथ का भोजन तुम्हें मिल रहा है, वो चाहे किसी जाति का हो। लेकिन कोई अपने आप को ऊंचे कुल का कहता है, वो मांस खाने वाला है, फिर वहां बैठना भी पाप है, पानी पीना भी पाप है। तो सदगुरु कबीर ने जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ऊंचा और नीचा माना। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि हाँ तुम या कबीरपंथी हो गए तो तुम बड़े हो गए। अगर आपका कर्म ऊंचा है तो आप बड़े हैं, आपका कर्म नीचा है तो आप छोटे हैं। फिर ये आया कि बड़ा कौन है, ये प्रश्न भी आया। मैंने अभी ही कहा कि जिसका कर्म बड़ा है वही बड़ा है। ज्ञान जिसके पास है और रहनी नहीं है, फिर वो बड़ा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास जानकारी बहुत है और आचरण में नहीं है, तो हम बड़ा थोड़े हो गए। बड़ा होने का पहला प्रमाण है छोटा हो जाना। बड़ा होने की पहली शर्त है छोटा बन जाना, और इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते हैं। वो रास किए थे लोग, इसको पढ़ते हैं। वो डांडिया खेले थे, इसको पढ़ते हैं। वो नाच किए थे, वो पढ़ते हैं। जबकि ये सब उनके साथ व्यर्थ में जोड़ा गया है। ना कृष्ण ने कभी रास किया है, ना डांडिया खेले हैं, ना नाच किए। कृष्ण परम योगी हैं, उनकी छवि को भी कुछ पाखंडियों ने खराब कर दिया। वो ज्ञान के धरातल पर खड़े हैं, वो योग के धरातल पर खड़े हैं, वो तपस्या के धरातल पर खड़े हैं। लेकिन कुछ नासमझों ने, कुछ पाखंडियों ने उन्हें भागवत में छलिया कह दिया, रसिया कह दिया, नाच करने वाला बना दिया, और फिर उनके छवि को भी खराब कर दिया। तो श्री कृष्ण ने परिचय दिया। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और जब विभाग का बंटवारा हो रहा था, कितना बड़ा यज्ञ होगा, इतने अतिथि आएंगे तो कौन क्या संभालेगा, तो सब ने कुछ न कुछ जिम्मेदारी ले ली। किसी ने मंडी जाने का कि हम सब्जी लाएंगे, किसी ने स्वागत का, किसी ने भंडार का,
किसी ने कोष का, किसी ने खजाने का, सबने जिम्मेदारी ले ली। जब श्री कृष्ण आए, कहा हमको भी कोई ड्यूटी दे दो, तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, आप क्या करेंगे? तो कृष्ण ने कहा क्या तुम सब में हम ही निकम्मा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते? कहा नहीं, अब काम ही नहीं बचा। कृष्ण ने कहा तुमने अपने हिसाब से काम चुन लिया है, मेरी नजर में अभी भी एक काम बाकी है। कहा क्या? कहा जो भी संत गुरुजन आएंगे उनका चरण मैं धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। ये परिचय कृष्ण देते हैं, लेकिन उनके इस छवि को हम कहाँ याद करते हैं? वे ये परिचय देते हैं कि अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनने की तैयारी शुरू कर दो, अगर बड़ा बनना है तो विनम्र हो जाओ, बड़ा बनना है तो सरल सहज हो जाओ, शांत हो जाओ। यही है बड़ा होने का पहली सीढ़ी, पहली शर्त। तो सदगुरु कहते हैं बड़ा वही है जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को विनम्रता के साथ जीता है, त्याग तप के साथ जीता है। एक प्रश्न और लोगों ने किया कि गृहस्थ जीवन में रहकर शांति कैसे प्राप्त करें। आज इस वर्तमान समय में इतना भागम भाग है कि आदमी दुनियादारी में ही ज्यादा जाता है। अब देखो, जब अगर ये तो एक दिन का सत्संग है, कहीं अगर 3 दिन का सत्संग हो, आप सबका भी अनुभव होगा, तो आदमी कहता है 3 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे। पहला दूसरा दिन कौन जाता है? तीसरे दिन चलेंगे। मतलब साफ है कि हमने सत्संग को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा। लेकिन यही घोषणा हो जाए कि सरकार की तरफ से कहीं राशन बंट रहा है, तब आदमी कहेगा कि हम 5वें दिन जाएंगे। पहले ही दिन चलते हैं, पता नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाए, पहले दिन पहुंच जाएंगे राशन लेने। मतलब हमने भौतिक चीजों को पहले नंबर पर रखा है, हम पहले ही चले जाएंगे। पर जहां ज्ञान बंट रहा हो, जहां भवबंधन से कटने का सूत्र बंट रहा हो, जहां अमृत होने का सूत्र बंट रहा हो, हम उसे दूसरे नंबर पर टाल दे कि चलेंगे कल परसों। पर सोचो साथ क्या जाएगा? आपने भौतिक धन इकट्ठा कर लिया, जरूरी है करिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि साथ जाएगा क्या? मान लो आपने बढ़िया घर बनाया, ठीक है, शरीर के लिए उपयोगी है, बनाइए। बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया कपड़े खरीदिए, सब कुछ बढ़िया रखिए। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि घर है तो घर छोड़ के झोपड़ी में आ जाओ। आपको नहीं कहते सड़क पर रहने शुरू कर दो, कि बढ़िया कपड़ा है तो इसमें गोबर लगा लो, ये भी साहब नहीं कहते। वे कहते कपड़ा भी बढ़िया पहनो, गाड़ी भी बढ़िया रखो, घर भी बढ़िया बनाओ, धन कमाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि ये किस लिए और कब तक। वह धन भी तो कमाना है जो साथ जाएगा, ये तो साथ जाएगा नहीं, ये तो शरीर के साधन के लिए है, शरीर की व्यवस्था के लिए है, और शरीर यहीं रह जाएगा। तो वह धन हमने कमाया क्या जो साथ जाएगा? सदगुरु कबीर ने कहा है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। सदगुरु कहते हैं जो साथ चले वही आपका धन है, जो छूट जाए वो सब माया है। और गुरु नानक देव तो कहते हैं, कह नानक बिना पा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई, कि अपने आप को चीन्हे बिना ये भ्रम की काई, ये माया कटेगी नहीं, वो समझ में नहीं आएगी। और तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। इन आंखों से, कानों से, अर्थात समस्त इंद्रियों से जितना तुम जगत को जान देख सकते हो, ये सब माया ही तो है, और ये सब साथ नहीं जाएंगे। इसका सदुपयोग करना। अगर धन है तो ये सोचना कि ये धन हमारा धर्म का कारण बन सके। अगर शरीर में बल है तो ये समझना हमारा बल किसी निर्बल का सहारा बन सके। अगर आपके पास ज्ञान है तो समझना किसी अज्ञानी का सहारा बन सके। लेकिन हमारा धन किसी निर्धन का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा धन किसी को सताने में काम आता है। हमारा बल किसी निर्बल का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा बल किसी निर्बल को सताने में काम आता है। अगर आपका धन गलत जगह लग रहा है, आपका धन गलत मार्ग में आपको ले जा रहा है, तो समझना वो धन धर्म का नहीं, अधर्म का कारण बन गया। सद्गुरु कहते हैं धन रखना बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग कर रहे हो तो ये बुरा है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो पहली शर्त यह है, जान लेना कि ये जीवन थोड़ा है, एक दिन यहां से सब कुछ छोड़कर जाना है। और जब सब कुछ छूटना है, मतलब सब कुछ, ये शरीर भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर छूटेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ धन छूटेगा, पद छूटेगा, रूप छूटेगा, ये तन भी छूटेगा, जिस तन पर हमें सबसे ज्यादा घमंड है, अभिमान है।
सदगुरु कहते हैं जब यह तन भी छूटेगा तो फिर इसके लिए तो तुमने प्रयास किया, पर जो नहीं छूटेगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ जाएगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ चल सकता है उसके लिए कुछ श्रम किया क्या? नहीं किया। और साथ क्या जाएगा? सदगुरु कहते हैं भक्ति साथ जाएगी, प्रेम साथ जाएगा, सत्य साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा। धर्म मतलब जो भी हम पुण्य कर जाते हैं, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता गुरु की सेवा, निष्काम भाव से जीवन यापन, और जब पूर्ण निर्मलता के साथ हम जीते हैं, गुरु भक्ति के साथ हम जीते हैं, समाज में हम प्रेम मैत्री के साथ जीते हैं, और भूखे को प्यासे को हम भोजन देते हैं, जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं, किसी रोए को हम हंसा देते हैं, किसी बिखरे को हम सूत्र में बांध देते हैं, तो समझना वही हमारी असली कमाई होती है जो साथ चलती है। और वो हम कहाँ करना चाहते हैं? तो जब सत्संग 3 दिन का हो तो हम अंतिम दिन जाने को सोचते हैं, मतलब धर्म हम तीसरे नंबर पर करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे साथ हमें सुख देगा, शांति देगा, उसे हमने तीसरे नंबर पर डाल दिया। तो गृहस्थ जीवन में सुख से जीना है तो ये समझ जाना कि जीवन एक समय धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। कहा ये समय निकट है, मृत्यु पास आ रही है, पल पल पास आ रही है। हम किस गफलत में हैं? तो गृहस्थ जीवन में भी अगर शांति से जीना है तो सजग हो जाओ कि एक दिन तो जाना है। तो हम धर्म का भी काम करें, परमार्थ का भी काम करें। सुबह शाम तक धन कमाइए तो धर्म भी कमाइए। सुबह शाम तक अगर अपनों को लिए जीते हैं तो कुछ जरूरतमंदों के लिए भी जिए, कुछ प्राणी मात्र की सेवा का भी भाव रखें। और जब पूर्ण निर्मल निष्काम भाव से हम समाज राष्ट्र के लिए जीने लगते हैं तो हमें शांति मिलने लगती है। जब हम दूसरों के शांति का कारण बनते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में स्थिरता का कारण बनते हैं तो हमारे जीवन में भी शांति घटित हो जाती है। तो इस तरह से संतों ने हमें बड़े ही भाव से, बड़े ही सहजता से हमारे जीवन को सजाया है, संवारा है, बड़ा ही मार्गदर्शन किया है। और जब इस तरह से संत गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा जीने का ढंग बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो प्रकाशोत्सव है, ये जो एक बहुत ही बेहतर हम सबको अवसर मिला है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो शाम को अपने व्यापार की समीक्षा करता है कि आज हमने क्या कमाया, क्या पाया, कितना घाटा लगा। सदगुरु कहते हैं जब सत्संग सुनकर के घर जाना तो रात में सोने से पहले अपने अपने जीवन की समीक्षा करना कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, अब तक हमारा जीवन क्या है, किस दिशा में जा रहा है। और जब आप समीक्षा करोगे, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखना चाहोगे तो पता चलेगा कि भयंकर दाग हमने लगा लिए, कहीं काम के, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं हिंसा के, कहीं छल, कहीं कपट के दाग हमने लगाए हैं। उन दागों को मिटा करके जब जिएंगे तब जीवन का असली विजय होगा, तब जीवन की असली जीत होगी। तो सदगुरु कबीर के इस प्रकाशोत्सव पर हम सबको यह कठिन संकल्प लेना है कि जीवन सिर्फ बाहर से जीने का नाम नहीं है कि बस जी रहे हैं, जी रहे हैं। सुबह उठे कैसे कमाना है, रात में उसी चिंता में सो गए, बढ़िया से नींद भी नहीं आई, फिर सुबह उठे फिर कमाना। कमाना खाना तो है ही, शरीर को भोजन ही तो देना है, शरीर को थोड़ा सा कपड़ा ही तो देना है, आवास ही तो देना है। इसके लिए इतना परेशान क्यों होना? परेशान अगर होना तो उसके लिए कि समय निकलता जा रहा है और हमने धर्म की कमाई नहीं की, हमने पुण्य नहीं कमाया।
मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं मीराबाई की, कि जब मीराबाई घर में थी तो राजा की पुत्री थी। राजा घर में शादी हुई, सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, हाथी घोड़े की कमी नहीं थी, दास दासियों की कमी नहीं थी, रेशमी वस्त्र की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन पीड़ा थी मन में, सुख नहीं था। धन था पर धर्म नहीं था, धन था पर भक्ति नहीं थी, अर्थात रविदास को उन्होंने चुना। ऐसे महान निर्मल फक्कड़ संत को उन्होंने सीधे कह दिया कि ये बाहर तुम जिस माया में अटके हो, इसमें सुख है ही नहीं, इसमें शांति है ही नहीं। और जब गुरु रविदास के इन वचनों को उन्होंने सुना तो फकीरी धारण कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ। और जब सब छोड़ दिया तब जानते उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बात गौर करना, जब तक घर में थी तब नहीं कहा, जब सोना चांदी पास में था तब नहीं कहा, हाथी घोड़े पास में थे तब नहीं कहा, जब सब छोड़ दिया तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब जब था तब तो नहीं पाया। जिसे आप धन समझते हैं वो उनके पास था, तब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरे पास, मैं तो गरीब हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मैं तो बिल्कुल अकिंचन हूं, कुछ नहीं मेरे पास। गुरु ने कहा सब छोड़ दो, जो कुछ भी बाहर से तुमने ओढ़ रखा है, जो कुछ भी बाहर से तुमने समेट रखा है, छोड़ दो। छोड़ दिया उन्होंने। तब पता चला कि अब हमें वो धन मिल गया जो कभी कोई लूट नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता। तब क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पायो? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा सदगुरु ने वो धन दिया है, संसार नहीं दिया। संसार तो जो धन दिया वो छूटने वाला था, मुझे समझ में आ गया कि एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो धन गुरु ने दिया है, जो धन हमें सदगुरु से मिला है, क्या कहा? खर्चे न खोटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा ये धन ऐसा है कि खर्च भी नहीं होगा, ये धन मिटेगा भी नहीं। जितना बांटो ये उतना बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। ये तो प्रेम का धन है, राम का धन है, गुरु के ज्ञान का धन है, सत्य का धन है। ये जितना बांटो उतना बढ़ेगा, उतना हृदय विशाल होगा, उतना जीवन विराट बनेगा। और मैंने अब उसी धन को पाया है। बाहर का धन अगर आपके पास है, कितना भी सुरक्षा में रखो, चोर नहीं चुरा सकता। ठीक है, आपके पास बढ़िया लॉकर होगा, फिंगरप्रिंट वाला लॉकर आप रखे होंगे, चोर नहीं चुरा सकता है, तोड़ नहीं सकता है। पर बेटा तो बांट लेगा एक दिन, बेटा तो ले लेगा ना, कि साथ ले जाओगे? है कोई उपाय? कफन में कोई जेब है ले जाने का? छूट गया कि नहीं? चोर नहीं लूटा, बेटा तो ले लिया, बांट लिया, परिवार ने बांट लिया। और बेटा भी नहीं तो सरकार का हो जाएगा, बैंक में रखा। पर ज्ञान का धन अगर आपने कमा लिया है, भक्ति का धन आपने कमा लिया है, तो कोई उपाय है कि कोई दूसरा आपसे ले ले? बल्कि आप जितना बांटोगे वो बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु कबीर यही तो कहते कि इस धन को कमाओ, ये साथ जाएगा। शरीर के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर तुम उस पाप को धोते धोते ही कई जिंदगियां बर्बाद कर दो। शरीर को खाने के लिए, शरीर के पहनने के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर जन्म जन्म लग जाए उस पाप को धोने में। शरीर के लिए व्यवस्था करनी है, ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। पर तुम तो इतने समर्पित हो जाते हो, इतने लीन हो जाते हो कि इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। धर्म जाए भाड़ में, भक्ति जाए किनारे, कोई लेना देना नहीं, हमें तो बिजनेस करना है। अरे करो साहब, रोकते थोड़े। वे तो कहते हैं बिजनेस करो, बढ़िया से करो, ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो, खूब कमाओ। लेकिन ये समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, भीतर या बाहर, सबको धर्म का कारण बना लो, सबको धर्म का माध्यम बना लो।
अगर आपके पास, मैंने कहा, धन है तो उसे भी धर्म का कारण बना लो। ये सोचो कि अगर मेरे पास धन है तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर यह भाव आपने रख लिया तो वो धन भी धर्म का कारण बन जाएगा। और यदि आपने धन से किसी का नुकसान कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, वो धन भी अधर्म का कारण बन जाएगा। तो साथ जो जा सकता है, जिसे आप ले जा सकते हैं, उस धन की व्यवस्था करना। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें संपूर्ण रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं। और वो संपन्नता बाहर के धन की नहीं, वो सुंदरता बाहर के धन की नहीं। सदगुरु कबीर कहते तुम सुंदर बनो, पर ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं, इस सत्संग रूपी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनना तो आधे घंटे का खेल है, आधे घंटे में बना भी देते हैं, आधे घंटे में उतर भी जाता है। अगर आप देखें ब्यूटी पार्लर जगह जगह आपको मिलेंगे, वहां माताएं ज्यादा जाती हैं, वो जाएं वहां सुंदर होके लौट आए। प्रकृति ने जो सौंदर्य आपको दिया है, आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले सुंदर बना देते हैं। अब उन्हें भी तो पैसा कमाना है, वो बना दिए, लेकिन बाहर निकले और पसीना आया तो आधे घंटे में सारी सुंदरता नीचे आ गई। लेकिन सत्संग में जो सुंदरता मिल गई, गुरु की शरण में जो सुंदरता मिल गई, वो जन्मों जन्म नहीं छूटती। मीराबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो नहीं मिटा। माता शबरी ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ मदालसा ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ सीता ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। वो किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गई थी, वो गुरु के संग में थी, संत के संग में थी, वो सत्संग में थी। और सत्संग से वो सौंदर्य मिला जो सौंदर्य जन्म जन्म तक छूटता नहीं, मिटता नहीं। क्योंकि हमने तो सिर्फ शरीर को सजाया, उन्होंने अपनी आत्मा को सजाया, अपने चरित्र को सजाया, अपने मन को सजाया। और जब मन सज जाता है, हमारा आचरण सज जाता है, आत्मा पर श्रृंगार चढ़ जाता है, तो वो जन्म जन्म के लिए चढ़ जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अगर सुंदर बनाना है, अपने मन को बनाना, अपने आचरण को बनाना। अगर संपन्न होना है तो ज्ञान से होना, प्रेम से होना। ये संपन्नता कभी मिटेगी नहीं, भक्ति से होना। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरब खरबलो दर्भ है उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले सब कोने काज। किसी ने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन क्या है? साहब ने कहा भक्ति से बड़ा क्या हो सकता है। भक्ति का धन अगर पास में है तो सारा खजाना एक तरफ, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, और भक्ति एक तरफ, फिर भी तुलना में नहीं आएगा। क्योंकि माता शबरी ने राम से धन नहीं मांगा था, सोना चांदी नहीं मांगी थी, राम जी सामने थे। राम ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। माता शबरी ने कहा भक्ति दे दो। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आज के समय राम जी सच में आ जाएं और किसी के द्वार पर कहें कि जो मांगना है मांग लो, तो आदमी कहेगा 10 मिनट तो लिस्ट बना ले, कितना सोना लेना है, कितना चांदी लेना है, कहाँ घर लेना है, कहाँ जमीन लेना है। तुरंत आदमी कहेगा राम आए हैं, छोड़ो भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले तो धन ले लें। पर माता शबरी के सामने राम है और कुछ मांग नहीं रहे। उन्होंने कहा भक्ति दे दो। और भक्ति भी ऐसी मांगी, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति। भक्ति में भी कोई कामना नहीं है। एक माता जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या? कहा ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा एक पोता है वो मैट्रिक पास कर जाए। मैंने कहा ठीक है, दे दिया। और अगर नहीं पास किया तो? कहा अगर पास कर गया तब तो आपको बुला के भंडारा करेंगे, दक्षिणा देंगे, और नहीं किया तो आपको हम पहचान देंगे। क्यों? आपका आशीर्वाद काम कर जाए तो ठीक है। मैंने कहा यहाँ भी सौदेबाजी, यहाँ भी बिजनेस, मतलब हमारा आशीर्वाद काम किया तब तो बुलाओगे, नहीं किया तो नहीं बुलाएंगे। संत को भी इसी नाते, भक्ति भी कपट वाली, भक्ति भी स्वार्थ वाली, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। मां शबरी की भक्ति जीवन में धारण करो। कोई कपट नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। और राम ने वही मार्ग उन्हें दिखाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, गुरुओं के पास जाना, संतों के पास जाना, उनका संग करना, उनके ज्ञान को सुनना, उनके जीवन को देखना, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना, भक्ति हो जाएगी। और माता शबरी ने वही किया। सदगुरु कबीर ने भी तो यही कहा कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। अगर जीवन में संपन्न बनना है, सम्राट बनना है, तो बाहरी धन की इच्छा ही छोड़ देना, सहज पाना, सहज लेना, लेते हुए उसके प्रति निष्काम रहना, उसमें अटकना मत। जैसे किराए के मकान में आप बैठते हैं, लेकिन किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं होती। ट्रेन में आप चलते हैं,
करोड़ों की गाड़ी है लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं होते, आप नहीं सोचते कि मेरी गाड़ी है, कुछ हो गया तो दर्द होगा, पर अपनी कार में बैठ जाओ तो पीड़ा होती है, पंचर भी हो जाए तो सिर दुखने लगता है, कैसे हो गए। पर ट्रेन में चलो तो कुछ होता है क्या, कुछ हो जाए है तो करोड़ों की, बैठे तो हो, जा तो रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, मेरा नहीं है। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही शरीर को, संसार को, अपने समस्त उपयोग की चीजों में यही भाव रखना निष्काम का कि मेरा नहीं है, बस हम इसका सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इसकी रखवाली कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जब इस भावना के साथ आप जिएंगे तो आपको कभी कोई दुख नहीं घेर सकता, कभी कोई संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो यह सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस धन की तैयारी करना, इस ज्ञान की तैयारी करना, तब सुखी जी सकते हैं, तब शांत होकर जी सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम सब यह सोचे कि यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया अवसर मिला है, कितना बढ़िया हम सबको संतों का संग मिला। તમને રામ કબીર અને આજે સ્વામી રણજીતભાઈ સાહેબે જે વાતો કરી કે આપણી સાથે શું આવશે, એ બહુ મહત્વની વાત કરી. એક બહુ અ, ઊંડો વિચાર, ચિંતન મનન માગી લઈ. કારણ કે આ બધું જ જો આપણે જોયું છે કે અસંખ્ય વાર આપણે ફ્યુનરલમાં ગયા છે, કશું આપણે લઈ નથી જતા, પણ શું આવે, સાચું ધન શું આવે. કબીર સદગુરુ કબીર સાહેબ આપણે શું કહી ગયા, સાચું ધન કેવી રીતે આપણે મેળવીએ, પ્રેમ, ભક્તિ અને સારા કર્મો દ્વારા. એ જે ધન કોઈ જૂટવી નથી લેતું, કોઈ લઈ નથી જતું. એની જે એમણે સંદેશો બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યો સ્વામી રણજીતદાસ સાહેબે. તો મિત્રો, જો કોઈએ આમાં ઉમેરવું હોય કે આને આપણે કેવી રીતે જે મનસા વાચા કર્મણા એમ વાત કરે છે કે મનથી, વિચારથી, વાણીથી, કર્મથી એકરૂપ રહીએ. અને સદગુરુ સાહેબનો કબીર સાહેબનો તો સીધો આપણને સોટી જ મારે છે એમ. અને ક્યાં તમે શોધો છો. તો આ એક આપણી સાથે શું આવશે, એ જ એક એના પર જે ચિંતન મનન કરીએ અને એને આપણે હવેના રોજિંદા માર્ગ પર આપણે કેવી રીતે અપનાવીએ, એ વ્યક્તિગત રીતે આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન, રૂપાંતરણ થઈ શકે. તો કોઈ પણ ભાઈઓ જો 1-2 મિનિટમાં કહેવું હોય, એડ કરવું હોય તો, નહીં તો પછી આપણે શાંતિ પાઠ કરીશું. રેઝ યોર હેન્ડ. કોઈ કંઈ એડ કરવું છે? જી, અનમ્યુટ કરજો. રામ કબીર સૌને. આજનો જે રણજીતજી સાહેબનું જ્ઞાન સૂત્ર હતું તેમાંથી આપણે રાજુભાઈ જેમ કહ્યું તેમ મોતી વીણી લેવાના. આપણને શું શું એમાંથી ઉપયોગી છે તે જોઈ લેવાનું. અને સાહેબે જે વાત કરી એ ખૂબ પ્રેક્ટિકલ વાત છે, આપણે બધાએ જીવીએ જ છે. અને પહેલી વાત આપણે કરી કે ભગવાન પર આપણું કર્મને તમે કર્મ કરો, પછી તમે ભગવાન પર બેસીને એમ વિચાર કરો કે આ મારું કામ કરી દેશે. એ વાત મુદ્દાની છે, એ પણ બરાબર છે. બીજી વાત, આપણે ઊંચા જઈએ છીએ, ઊંચાઈ પર મારી જવું છે, પણ સાથે સાથે તમે કેટલી નીચાઈ પણ જઈ શકો છો. અને સૌથી વાત નીચાઈની છે કે આ એમણે જે દાખલો આપ્યો કૃષ્ણનો, કે બધાએ કહ્યું કે મને આ કામ મળ્યું, મને આ કામ મળ્યું. હવે કંઈ કામ તમારું રહ્યું નથી કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણએ કહ્યું કે મારું મુખ્ય કામ જે છે તે આ બધા સંતોને ભોજન કરાવ્યા પછી એમની પતવારી ઉઠાવવાનું કામ મારું છે. એટલે કેટલું સભ્યતા, કેટલી બધી એમનામાં વિનમ્રતા કૃષ્ણની છે. એ ખૂબ સુંદર વાત છે. આપણે જીવનમાં બધું કરીએ, ખૂબ મોટા આવે, બધું આવી જાય, પણ આપણે વિનમ્ર કેટલા છે, એ બે વાત. ત્રીજી વાત, આપણે સાચું ધન શું કમાય. ધન બધું કમાય જરૂરી છે,
અને કમાવવું જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે હંમેશા ધ્યાન રહેવું જોઈએ કે મારી સાથે શું આવવાનું છે. એટલે શું આવવાનું છે તેને આપણે સાથે કાયમ જ રાખો કે મારી સાથે આ આવવાનું છે એને હું નહીં છોડું પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં. તો ખૂબ ખૂબ સરસ સુંદર વાત થઈ ગઈ છે ને. અને આપણે ધર્મનું કારણ બનીએ. હું એક ધર્મનું કારણ બનું, આ ચોથી વાત છે. દરેક કાર્યમાં, સત્કાર્યમાં મારું કંઈક બી કણી હું આપી શકું, હું પોતે ધર્મનું કારણ બનું, એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. આ જીવનના પાયાના આપણા સિદ્ધાંતો જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવવાનું, એમાંથી ખૂબ સુંદર વાતો મળી છે. સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. ગોવિંદજી, તમે જે વાત કરી એ એક જ દાખલો હું આપી દઉં કે આપણે ગાલી હતી તેમાં આંક હતો. આંકની ફરતે બધું ફરતું, તેમ આપણે જે તમે કીધું ને એક કોર પ્રિન્સિપલ હોય છે ધર્મને પકડી રાખવાનો, જે કોર પ્રિન્સિપલની વાત કરી એમ, તે કોર પ્રિન્સિપલને પકડીને આજુબાજુ બધું ચાલતું રહેવું જોઈએ એમ. તો કોર પ્રિન્સિપલ હોય તો પછી તમે ગમે તેમ ફંટાઈ નહીં જાવ. તેમ આંખ જે ગાડીનો, આપણે બધા ખેડૂતના છોકરાઓ છે, તો આંખ એવો એક મજબૂત અને સ્થિર રહેતો એની ફરતે બધું ફરતું. તેમ આપણે પણ તમે જે સરસ વાત કરી કે હા, એક કોર પ્રિન્સિપલ, કોર વસ્તુ આપણી અંદર હંમેશા પકડી રાખવી જોઈએ અને એના પરથી પછી બધા નિર્ણયો લેવા આવવા જોઈએ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ ગોવિંદજી, તમે જે ઇનપુટ મૂક્યું ને ત્યાં કીધું કે આપણે જે યોગ્ય લાગે, જે ભાઈઓ સાંભળતા છે, બહેનો સાંભળતી છે, તમને જો યોગ્ય લાગે તો એક બે વસ્તુ લેવાની, એના પર ચિંતન મન કરીને કરવાનું કે ભાઈ હું આને મારા જીવનમાં હું કેવી રીતે અપનાવું કે અને રૂપાંતરણ મારું થાય કે ધીરે 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 આપણે જે લઈ જવાનું છે સાથે અંતમાં, તે આપણે લઈ જઈ શકીએ. તો હું હવે શાંતિ પાઠ કરી અને પૂર્ણ કરું છું અને આવતા રવિવારે પણ મળીશું. હરિ ઓમ. પૂર્ણ છે, પૂર્ણ આ છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ યોગ્ય છે બધું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. રામ કબીર.